Now when today's lecture will be over now, then once again have one fresh revision. Read it once again. Otherwise you will forget everything. Yes. PPT is visible to all of you? Hello. Is it visible? Advanced manufacturing processes. Screen is visible to all of you? Yes, sir. Okay, thank you. Uh, now whatever we have seen till now, whatever the manufacturing processes we have seen, these are conventional manufacturing processes, right? What are those? We have seen casting, forging, sheet metal operations. We have seen lathe operations, milling operation, drilling operation. All these are conventional one. Now we are going to see the advanced manufacturing processes, right? In advanced manufacturing processes, we are using upgraded, latest, and complex technology in order to manufacture the components in fast way, in most efficient way, in most accurate way. That is nothing but your advanced manufacturing process, right? Now in that, this micro machining and all this we will cover tomorrow. Yes. The first one is the additive manufacturing. Now what is additive manufacturing? Additive word का क्या मतलब होता है? Add करना, right? Now there are three types of manufacturing: subtractive manufacturing, additive manufacturing, and formative manufacturing or forming manufacturing. Subtractive manufacturing में क्या करते हैं हम? मटेरियल रिमूव करके पार्ट बनाते हैं. That is your lathe operations, milling operation, drilling operation. ड्रिलिंग में क्या करते हैं? मटेरियल रिमूव करके ड्रिल बनाते हैं. दैट इज योर सब्सट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग. अब फॉर्मिंग मैन्युफैक्चरिंग में क्या करते हैं? जैसे हमारे फोर्जिंग हो गया, बेंडिंग हो गया, एक्सट्रूजन हो गया, उसमें क्या करते हैं? फोर्स अप्लाई करके मटेरियल का शेप एंड साइज चेंज करते हैं. सिमिलरली इन एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में क्या करते हैं हम? वन बाय वन लेयर, एक हॉट टेबल के ऊपर, एक टेबल के ऊपर वन बाय वन लेयर ऐड करते जाते हैं. That is why it is called as additive manufacturing. This 3D printing is the part of additive manufacturing. 3D printing is also known as additive manufacturing. जिस मटेरियल का हम पार्ट बनाते हैं वो मटेरियल हम मेल्ट करते हैं और जिस लोकेशन को उसको बिठाना है उसके ऊपर हम लेयर बाय लेयर बिठाते जाते हैं. आपने 3D प्रिंटिंग मशीन कैसे काम करते हुए देखा होगा. लेयर बाय लेयर वो नोजल के अंदर से सेमी सॉलिड मटेरियल आता है और वो लेयर बाय लेयर हम बिठाते हैं. सो एज इट इज सेमी सॉलिड, सो बिकॉज ऑफ ग्रेविटी इट इज फॉलिंग अंडर, और सेमी सॉलिड होने की वजह से वो बॉन्ड क्रिएट करता है. एक लेयर दूसरे लेयर के साथ बॉन्ड क्रिएट करता है. so that is how this additive manufacturing is done, right? तो ये एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए? सबसे पहले हमारे पास डिजाइन चाहिए. तो वो डिजाइन कैसे तैयार करेंगे हम? कंप्यूटर के ऊपर कैड सॉफ्टवेयर यूज करके, कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग, राइट? कैड सॉफ्टवेयर यूज करके हम वो डिजाइन क्रिएट करेंगे. जैसे कि ऑटोकैड, कटिया, ये जो सॉफ्टवेयर है ना, उसके ऊपर हम कौन से भी कंपोनेंट का डिजाइन क्रिएट करेंगे, राइट? उसके ऊपर वो डिजाइन एसटीएल फाइल में कन्वर्ट करेंगे. वो एसटीएल फाइल हम 3D प्रिंटिंग के इसमें इंपोर्ट करेंगे थ्रू नेटवर्क और थ्रू पेन ड्राइव. उसके बाद 3D प्रिंटिंग का ऑपरेशन शुरू होगा लेयर बाय लेयर, और उसके बाद वो ऑपरेशन फिनिश होगा. ऑपरेशन फिनिश होने के बाद हम वो जो लेयर है टेबल के ऊपर जमा हुआ है वो रिमूव करेंगे. दैट इज योर प्रोडक्ट. दैट इज योर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग और 3D प्रिंटिंग. आई होप आप सब ने 3D प्रिंटिंग की मशीन देखी होगी किधर. तो हमारे लैब में ही है.
Okay, now you can see here additive manufacturing. Additive manufacturing, or it is also known as 3D printing, is a process that creates a physical object from a digital design. Additive manufacturing, also known as 3D printing, it is a transformative approach to industrial production that enables the creation of lighter, stronger parts and systems, right? It is yet another technological advancement made possible by the transition from analog to digital processes, right? Now, additive manufacturing uses data, computer-aided software, 3D object scanner to direct hardware or to deposit material layer upon layer in precise geometric shapes, right? As its name implies, additive manufacturing adds material to create an object. You can see here the term additive manufacturing references technologies that grows three-dimensional object one superfine layer at a time. तो हम एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में क्या करते हैं? सपोज ये टेबल है, टेबल के ऊपर क्या करते हैं? नाउ ये टेबल कैसे मूव होता है? एक्स डायरेक्शन में इसके ऊपर, और जो नजल है, नजल वाई एंड जेड डायरेक्शन में मूव होता है, इस डायरेक्शन में, एंड सॉरी this y direction, okay, and z direction, that is vertically, right? So three dimension जब movement होती है तब हम x y z, थ्री डायमेंशनल मतलब क्या? 3D, that's why name is given 3D printing. प्रिंटिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम प्रिंट करते हैं, जो भी हमको फिजिकल कंपोनेंट चाहिए, फिजिकल मॉडल चाहिए, उसका मटेरियल हम मेल्ट करते हैं, और मेल्ट करके लेयर बाय लेयर प्रिंट करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज 3D प्रिंटिंग. और लेयर बाय लेयर ऐड करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, राइट? नाउ यू कैन सी हियर each successive layer bonds to the preceding layer, melts और partially melted material. जो पहला लेयर है वो दूसरे लेयर के साथ बॉन्ड क्रिएट करेगा या चिपक जाएगा. क्यों? क्योंकि दैट इज इन द मेल्टेड पोजिशन और इन सेमी सॉलिड पोजिशन एंड इट इज हॉट, so that will create the bond, and as it will cool down, that bond will become stronger, right? Now it is possible to use different substances for layering material, including metal powder, thermoplastics, ceramics, composites, glass, and even edible like chocolates. So 3D प्रिंटिंग में हम कौन कौन सा मटेरियल यूज कर सकते हैं? हम मेटल भी यूज कर सकते हैं, मेटल को भी मेल्ट कर सकते हैं नोजल के अंदर, सिरेमिक्स को भी यूज कर सकते हैं, थर्मोप्लास्टिक्स को भी यूज कर सकते हैं, कंपोजिट्स को भी यूज कर सकते हैं, ग्लास को भी यूज कर सकते हैं, या चॉकलेट का भी हम 3D प्रिंटिंग बना सकते हैं. आपने देखा होगा चॉकलेट का आदमी बनाया, चॉकलेट का हाथ बनाया, तो वो कैसे बनाते हैं? 3D प्रिंटिंग से ही बनाते हैं. चॉकलेट को मेल्ट करते हैं और लेयर बाय लेयर थ्री डायमेंशनल XYZ में मूवमेंट करके बिठाते हैं, राइट? नाउ द जर्नी फ्रॉम .stl फाइल. नाउ 3D प्रिंटिंग में, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में, जो कैड मॉडल जब हम मशीन में ट्रांसफर करते हैं उससे पहले .stl फाइल जरूरी है, राइट? यस, .stl फाइल क्यों? क्योंकि दैट फाइल विल डिवाइड योर CAD model into layer by layer. Okay, 2 3D object is revolutionizing manufacturing. Okay, you can see here 3D printing. यहाँ पे देख सकते हैं कंप्यूटर के अंदर ये CAD मॉडल बनाया, राइट? ये CAD मॉडल हमने .stl फाइल में कन्वर्ट किया. ओके, देन वो मॉडल हम वाईफाई या नेटवर्क से या पेन ड्राइव से 3D प्रिंटिंग की जो मशीन है उसको कनेक्ट करेंगे. उसके बाद ये जो दिख रहा है ना, ये 3D प्रिंटिंग मशीन का टेबल है, राइट? सो उसके ऊपर लेयर बाय लेयर प्रिंट करते जाएंगे.
सो सबसे पहले ये बॉटम का लेयर बनेगा, सर्कल देख रहे हैं ना, तो वो लेयर बाय लेयर बनते 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 जाएगा, धीरे धीरे ऐसे बनते जाएगा, राइट। यहाँ पे ऐसे बनेगा, तो एक 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 लेयर करके ये एक एक लेयर बनेगा, राइट। और ये एक एक लेयर, जो नीचे वाला लेयर है वो ऊपर वाले लेयर को चिपक जाएगा। क्यों चिपक जाएगा? क्योंकि इट इज हॉट, मेल्टेड। वेल्डिंग में देखा है ना हमने, अगर मेल्टिंग कंपोनेंट है या सेमी सॉलिड है या हॉट है तो वो चिपक जाएगा, बॉन्ड क्रिएट करेगा। दैट इज हाउ योर मॉडल इज क्रिएटेड इन द 3D प्रिंटिंग। समझ में आया? Additive manufacturing processes. Now there are different processes in the additive manufacturing, like material extrusion. In material extrusion, we are extruding the material from the nozzle. Different materials can be extruded, and these materials can be set up layer by layer. For in material extrusion, we are using the simple materials like thermoplastic and all. Now, second process is directed energy deposition. In directed energy deposition, we are giving high energy in the form of lasers to the materials, and we are melting that material, and then we are adding this layer by layer. Now, by using this directed energy deposition DED, we can melt the metal powder also, right? So metal का 3D प्रिंटिंग कैसे करते हैं? मेटल पाउडर लेते हैं, उसको मेल्ट करते हैं और लेयर बाय लेयर प्रिंट करते हैं। बाकी सब कंपोनेंट को भी वैसे ही करते हैं, लेकिन मेटल के केस में हमको टेम्परेचर बहुत हाई चाहिए और स्पेशल तरह का नोजल चाहिए, और वो मेटल 3D प्रिंटिंग के लिए हमको स्पेशल केयर लेनी पड़ती है। Now in material jetting, this material jetting is same as that of jet jet jetting we are using in the printer. हमारा जो प्रिंटर है ना, हम फोटोकॉपी लेते हैं या प्रिंट लेते हैं, उसमें भी हम जेट जेट प्रिंटर इंक जेट प्रिंटर यूज करते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, सिर्फ 2 डायमेंशनल होता है, यहाँ पे 3 डायमेंशनल होता है। Then next one is the binder jetting or powder bed fusion. These are the different processes by using this additive manufacturing can be carried out, right? Now, what are the different materials that we are using in the additive manufacturing? जो जो मटेरियल हम मेल्ट करके लेयर बाय लेयर क्रिएट करते हैं, उसमें कौन कौन से मटेरियल यूज कर सकते हैं? इट कैन बी यूज्ड थर्मोप्लास्टिक, मेटल्स, सिरेमिक्स, बायोकेमिकल्स। इवन 3D प्रिंटिंग से हम बिल्डिंग भी बना सकते हैं लेयर बाय लेयर, राइट। तो उसके लिए बहुत बड़ा रोबोट चाहिए। नाउ इन एडिट व्हाट आर द एप्लीकेशंस इन एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग? यस, नाउ हमने लेथ मशीन देखी, ड्रिलिंग मशीन देखी, मिलिंग मशीन देखी। उसमें क्या होता है, हम मटेरियल रिमूव करते हैं, राइट। मटेरियल रिमूव करते हैं तो मटेरियल वेस्ट हो जाता है और कॉम्प्लिकेटेड शेप्स भी नहीं बना सकते। लेकिन हाँ, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में क्या कर सकते हैं हम? कॉम्प्लिकेटेड शेप्स बना सकते हैं, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, क्योंकि फाइनली हमारे पास क्या है, कंप्यूटर का डिजाइन है और टेबल का और नोजल का 3 डायमेंशनल में मूवमेंट है। बस कंप्यूटर के अंदर उसको कोड दिया, that will automatically convert into the 3D object, right? Yes. So what are the applications where these 3D printing components are used? In the aerospace industry? Now in uh, aeroplane, there are some complex geometries. So such complex geometries cannot be produced with conventional manufacturing processes. So in that case, we can use the 3D printing or additive manufacturing. Yes. Now, in some of the automotive parts can also be printed with the help of additive manufacturing. In healthcare sector also, we are using the additive manufacturing to create the small parts, complicated parts in product development or in showcase simple any to create the idols and to different kitchens and all that can also be created with the help of 3D printing. Yes. Now there is one more thing, रैपिड प्रोटोटाइपिंग। रैप प्रोटोटाइप मतलब क्या?
एक्चुअल रिप्लिका ऑफ एक्चुअल मॉडल। सपोज हमको टरबाइन बनाना है, राइट? अब रैपिड प्रोटोटाइपिंग, ये पहले प्रोटोटाइप मतलब क्या ये समझ लो। रैपिड को तो आपको पता है, रैपिड मतलब फास्ट। प्रोटोटाइप को फास्टली जो बनाते हैं उसको हम रैपिड प्रोटोटाइपिंग बोलते हैं। सो पहले प्रोटोटाइप क्या ये समझ लेते हैं। सपोज हमको एक वाटर टरबाइन बनाना, तो क्या करेंगे? पहले वाटर टरबाइन का कंप्यूटर के ऊपर डिजाइन बनाएंगे। कंप्यूटर के ऊपर यह उसको हम टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर के ऊपर जो टेस्ट करते हैं और एक्चुअली जो टेस्ट करते हैं दैट विल बी डिफरेंट। प्रोटोटाइप मतलब एक्चुअल रिप्लिका ऑफ द कंपोनेंट। अभी वाटर टरबाइन इंस्टॉल करने से पहले उसको हम टेस्ट करते हैं। सो पहला जो कंपोनेंट है उसको हम प्रोटोटाइप बोलते हैं। उसका साइज, डायमेंशन एग्जैक्टली सेम रहते हैं ओरिजिनल कंपोनेंट के साथ, राइट? तो प्रोटोटाइप जो बनाते हैं वो बनाने में बहुत समय लगता है। बिफोर दिस 3D प्रिंटिंग, प्रोटोटाइप हम लेयर बाय लेयर या स्पेशल टेक्निक्स यूज करके बनाते थे, उसके लिए बहुत टाइम लगता था। अभी इन रैपिड प्रोटोटाइपिंग में क्या करते हैं हम? प्रोटोटाइप रैपिडली बनाते हैं। सो वो रैपिडली बनाने के लिए कौन सी मेथड यूज करते हैं हम? एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, दैट इज 3D प्रिंटिंग। Creating prototype rapidly with the help of additive manufacturing or 3D printing, that is nothing but your rapid prototyping। बस यही है। और different types है rapid prototyping, right? Yes। Now remaining components are CNC मशीन रह गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स रह गया, एक्सट्रूजन भी रह गया, और क्या रह गया हमारे सिलेबस में? यस, बेसिक ऑफ CNC, reconfigurable manufacturing system, and micro machining। Okay, I think we should stop now। टाइम भी बहुत हो गया है। Okay, yes। Am I audible to all? Yes, sir. Yes, sir. Okay, yes। Okay, first I will stop the recording।